Hello everyone, myself Dr. Geeta Arora, and today I'm here to teach you business studies, and I will tell something about management also. So before coming to business, first of all, let me write here. Before teaching about business studies, first of all, you must have knowledge about what is business. So what is business? And business is a very, it looks like simple, but it's a very complicated in itself. But before telling business, I will tell you there are a lot of human activities which are done around us. Human done a lot of activities in daily life, as all of you are doing. Like some activities we can term as economic activities and some as non-economic activities. So here we can tell all activities can be classified as economic and non-economic and non-economic. Up here you will think why I'm telling about economic and non-economic activities. We are I'm teaching business here. So before understanding business, you must have knowledge about economic and non-economic activities. First of all, I am taking economic activities. Economic. As the name implies, economic activities are the activities which are done to earn money. Money is the major motive behind economic activities. If you are done some activities out of love, it is not economic. अगर आपका main motive यहाँ पे economic में क्या है? Main motive is to earn money. क्या है? Earn money. For example, अगर मैं यहाँ कहती हूँ doctor treating patients at hospital, what is this? What is this? Economic activity. A nurse serving patients at a clinic, at a hospital, and we can take other example also. In for which you are getting money. For example, chartered accountant is auditing the account. या accountant में कोई भी services if he or she is providing, that is economic activity. So here I am telling economic and non-economic activities so that business concept should be clear to you. So please listen carefully. So economic activities के अंदर हम money earn करना है. If you are not earning money, if you are doing for welfare purpose, then it is not economic activity. If your mother is cooking food for you at home, it is not economic. It is non-economic. So now we are coming at non-economic activities. Non-economic activities. Main motive is here. Main motive is to satisfy psychological needs. साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए आप कर रहे हैं, लव के लिए आप कर रहे हैं, अफेक्शन के लिए आप कर रहे हैं, या इफ यू हैव पेट्रियोटिज्म के लिए आप कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इन विच यू आर डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज फॉर द सेक ऑफ someone sympathetic. You are sympathy, you have sympathy with someone. You have sympathy with someone, you are doing out of love, and all these things are non-economic activities. But here money earning is not the motive. What you get while doing non-economic activities, you get a different type of satisfaction you get in this. So non-economic activities. Now, non-economic, okay, can anyone tell what's the example of non-economic activities? For example, if a mother is cooking food at home, it is a non-economic activities. Mother is cooking food, and if a doctor is treating his son at home, it is non-economic. A person who is patriotic by heart and by nature, and he is doing something for his country's sake, that is known as
that is called नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं हमारी, तो वो हम बिजनेस एंगल में उसको नहीं लेते हैं। सिंपैथेटिक जो हमारा पेट्रियोटिज्म है, साइकोलॉजिकल नीड, सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है, वेल्थ अर्निंग इज नॉट द मोटिव हियर। बट now we are coming to the point, we are doing here business studies, so we are discussing economic activities। so I am telling you now about इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। हम उसको 3 पार्ट्स में ले सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में ले सकते हैं। हमारा कौन कौन सा है? फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन, एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तीन है। There are 3 types of economic activities which are done by human being all around us. These are business, profession and employment. Business क्या होती है? What is business? Business is an economic activity. What is done? It is in which manufacturing, purchasing, selling, distributions of goods and services are done on a regular basis. किस पे? On a regular basis and to earn प्रॉफिट मोटिव। किस लिए की जाती है? प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। ये हमारी प्रॉफिट मोटिव डज नॉट एग्जिस्ट, देन इट इज नॉट बी कंसीडर्ड एज बिजनेस। और इसमें टू अर्न, इसमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स, जिसमें हम ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं। क्या करते हैं बिजनेस के अंदर? हमारी क्या होती है बिजनेस के अंदर? प्रॉफिट हमारा होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। और कंटिन्यूटी होती है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और बाइंग और सेलिंग शुड एग्जिस्ट हियर। अगर बाइंग एंड सेलिंग नहीं है तो बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई बाय अ थिंग फॉर आई जस्ट वांट टू गिफ्ट इट टू माय डॉटर, सो आई हैव बॉट, so this will not be considered a business because I'm not going to sell this to the consumer, I'm just gifting it to someone else, so it will be considered non-economic activity। And profit motive should be there in business. If profit is not there, then business will not be considered, and continuity is must। If business, if you suppose you have done only one transaction, for example there is a homemaker at home and she is selling scrap at home, मतलब उसे scrap जो भी आपके जो boxes होते हैं newspaper, she sold and earned 50 rupees and she is saying okay I'm doing business। no, she is wrong here, she is not doing any type of business। एक ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन करने से कोई बिजनेस नहीं होता। बिजनेस के लिए सबसे बेसिक है कि आपके पास एक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, और आप उसको क्या कर रहे हैं? आप कंटिन्यूटी में हैं और वो ट्रांजेक्शन आप बार बार कर रहे हैं, तभी वो बिजनेस कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। और सबसे मेन है आपका जो है, जो बिजनेस है वो क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका प्रॉफिट वो नहीं होगा। और बाइंग एंड सेलिंग होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो होता है एक रिस्क फैक्टर भी होता है, वो बिजनेस में ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। बिजनेस में ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। इफ रिस्क इज नॉट देयर, देयर इज नो बिजनेस। वेयर देयर इज रिस्क, देयर इज प्रॉफिट, एज कंप्यूटर हैज राइटली सेड। सो रिस्क होना चाहिए। रिस्क होता है, होना क्या चाहिए? होता है फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है, मॉनेटरी रिस्क हो सकता है, ऑपरेटिंग रिस्क हो सकता है, इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है, नेचुरल रिस्क हो सकता है। सो बिजनेसमैन शुड कंसीडर ऑल द रिस्क फैक्टर इनटू कंसीडरेशन बिफोर मेकिंग हिज और हर बिजनेस सक्सेसफुल। मतलब ऑल these factor if are मतलब basically business is the culmination of all these factors। if one of the factor is eliminated, then those transactions will not be considered as business। so business के लिए सारी transactions का culmination होना बहुत जरूरी है। ठीक है? okay, so this was all about business and there is a lot of things which I can share here, but first of all I would like to mention here about profession। so guys, what is profession here? So you will think it is also looking like business। no, it's not business। मतलब it is economic activity। profession क्या है? profession भी क्या है हमारा? क्या है प्रोफेशन? हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इसकी दूसरी फीचर क्या है? एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इसको हम ये कह सकते हैं स्पेशल स्किल एंड नॉलेज इज नीडेड। स्पेशल स्किल एंड नॉलेज इज नीडेड। अगर वो स्पेशल स्किल और नॉलेज नहीं है तो इट मींस आप प्रोफेशन नहीं कर रहे। एक इसकी सबसे बेसिक जो प्रोफेशन की फीचर है वो है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, चार्टर्ड अकाउंट।
अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जितने हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं वो सब प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, अकाउंट्स वगैरह बनाते भी हैं, कंपनीज के ऑडिट में भी उनकी हेल्प होती है। तो अब किसको फॉलो करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है वो किसका करेगा, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब इसी तरह डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स भी क्या होते हैं, प्रोफेशनल, उनको किसका फॉलो करना है, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस या कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करते हैं एंड एवरी जो प्रोफेशनल हैज टू फॉलो दीज कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब इट इज एज्यूम्ड इफ यू आर डॉक्टर, इफ यू आर लॉयर, इफ यू आर प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, then you are supposed to fulfill all these terms and condition, yeah, you can say this code of conduct is supposed to be fulfilled by you. So this is about profession, and profession, a specific knowledge and skill should be here, and you should have a certificate of practice. Only then you can do all these things profession. But if you talk about business, no such knowledge, no such degree qualification is not needed in business. If you are 10th pass, if you are 8th pass, and suppose you are illiterate, you're not going to school anytime, but still you can start your business. If you have money, if you have knowledge about that field, if you have keen desire to do that, you can go for it. But for profession situations are quite different. प्रोफेशन के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, मेडिकल किया है तो MBBS नीट ये सब क्लियर होने चाहिए, आपके पास प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओनली देन आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो प्रोफेशन के लिए क्या होता है, ये इस तरह की चीजें हमें फॉलो करनी होती हैं। तो प्रोफेशन के लिए आपका नॉलेजेबल होना, उस स्पेसिफिक स्किल का होना बहुत जरूरी है। आप एक डॉक्टर को डॉक्टर आप तब तक किसी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते अगर आपने उस चीज में स्टडी नहीं की हुई है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स का, यू कैन। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने उस गारमेंट्स के बिजनेस में कुछ आपको क्वालिफिकेशन नो, अगर आप क्या होगा, अगर आपके पास ठीक है एक्सपीरियंस है, थोड़ा नॉलेज है, आप कर रहे हैं, अगर कोई गलती भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशंस होते हैं वो हमें अलाउ नहीं करते, वो हमें वहां एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको हमें फॉलो करना, राइट। नाउ वी आर कमिंग एट एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट हमारा होता है, जैसे सपोज मैं आपको बोलूं, इसमें टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होता है। मतलब एक पर्सन जो है, वन पर्सन जो है, इसमें पर्सन जो है वर्क करता है, पर्सन रेंडर हिज सर्विसेज, हिज सर्विसेज टू अदर अदर अंडर अंडर अ एग्रीमेंट, कलेक्ट्स वेजेस और सैलरी, कुछ भी कलेक्ट करता है, वेजेस भी हो सकते हैं, सैलरी भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अगर एक पर्सन किसी के अंडर काम कर रहा है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो वो हमारा होता है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल अ टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, स्कूल में काम कर रही है, ऑब्वियसली ही और शी मस्ट हैव साइंड अ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया होगा। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के लिए जो है, एक्सक्यूज मी, यस, तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया होगा, तब जो पर्सन जॉब दे रहे हैं हमें वो एम्प्लॉयर है, और जो पर्सन वर्क कर रहा है, अपने सर्विसेज रेंडर कर रहा है, टीचर यहाँ पर, वो एम्प्लॉय है। तो देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है वो क्या पे करेगा, कंसिडरेशन में देयर शुड बी अ कंसिडरेशन, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोफेशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इफ this thing is not clear to you, economic क्या है, non economic क्या है, you would not be able to understand anything. So employment is also it is an economic activity in which a person render his or her services to another person, another organization. अगर suppose I am teaching in a school, teaching in a college, so definitely I must have signed a terms of agreement, contract letter I have received, तो उसमें मुझे साइन करके दे दिया। अब उसी टर्म्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मुझे वहां सर्विसेज रेंडर करनी है, and I will get consideration according to that agreement. So this is known as employment. Employment के अंदर अब one employee may get salaries, may get wages. For example, अगर टीचर का एग्जाम्पल है तो he or she is drawing salary from school, from colleges, wherever he or she is teaching. But if we talk about labor, if a labor is working in a factory and एक employer employee relationship exist करता है, तो लेबर को क्या मिलेगी, wages. So what is this, it is also economic activities and a part of employment. So you should have clarity about what is the difference between business,
प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सो ठीक है, तो एक एक एग्जांपल आई एम रिपीटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, सपोज कीजिए अगर आप बिजनेस के अंदर भी आप डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं या ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। इफ यू आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इट मींस यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एंड डिलीवरिंग इट टू अदर। मतलब फॉर एग्जांपल आई एम डीलिंग इन गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का मेरा यूनिट है और मैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये बन रहे हैं और फर्दर मैं इसको सेल करती हूँ प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो ये इट मींस मेरी जो बिजनेस है वो क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। यहां मैं बता देती हूँ कि जो बिजनेस है कुड बी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, कुछ भी हो सकता है, और ट्रेडिंग, ट्रेडिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में मैं मैन्युफैक्चर करके सेल कर रही हूँ और ट्रेडिंग में क्या हो रहा है कि मैंने बाय किया, एक पर्सन से एक्स से बाय किया, मैं बाई हूँ और मैं जेड को सेल कर रही हूँ, मैं इसको प्रोसेस नहीं कर रही, मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, तो आई एम अ ट्रेडिंग पर्सन। तो बिजनेस में दोनों ही फॉल करते हैं, वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। कोई भी बिजनेस है, अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको एग्रीकल्चर का, फार्मर इज ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सेलिंग पर्पस, बिजनेस है वो। अगर यहाँ पे फिशिंग का कोई फिशरमैन बिजनेस करेगी, फिश को ड्रॉ कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, तो वो भी बिजनेस है। अगर हम प्रोफेशन की बात करते हैं, कोई भी जो बिजनेस जो प्रोफेशन में होगा, दे आर नोन एज प्रोफेशनल्स। डॉक्टर्स हो सकते हैं, और हमारे इसमें हम लॉयर्स ले सकते हैं, और इसमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ले सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज ले सकते हैं, बट उनका अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है, ओनली देन दे कैन डू। अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर एग्रीमेंट होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स अ पर्सन रेंडर सर्विसेज एंड इन कंसल्टेशन ही और शी गेट सैलरीज और वेजेस एज द केस मे बी। सो आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू। सो नाउ अगर हम बिजनेस स्टडीज को हम डील कर रहे हैं, तो वी विल पिक ओनली वन पॉइंट, बिजनेस, बिकॉज दिस इज द टॉपिक विच इज ऑफ वाइडली इंपॉर्टेंस फॉर यू, बिकॉज दिस इज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। तो यहाँ हम बिजनेस की हम डिटेल कर सकते हैं। फिर फाइन, बिजनेस को मैं फिर भी एक लाइन में यहाँ रिपीट करना चाहूंगी। व्हाट इज बिजनेस? What is business? Business is an economic activity in which manufacturing, selling, buying, selling, and exchange of product and services take place on a regular basis, on a regular basis to earn profit and to fulfill कस्टमर नीड्स या फिर ह्यूमन नीड्स। अगर आप ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, और आपका मोटिव लेकिन प्रॉफिट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस कहेंगे। So this was the just brief of business studies. Is it clear? Okay. Now we are moving towards management. Okay. I'm now giving a brief view of management. Management. Very simple term, look wise, if we talk about management, it is basically, it is a process of interrelated activities. It's a process which is done by business, all business organization to achieve their goal, and it is essential area. अब आप कहोगे what is management? Management होता क्या है? Management basically we can say it is the art of, it is the art of getting things done effectively and efficiently to achieve to achieve predetermined goals. एंड हम ये भी कह सकते हैं गेटिंग थिंग डन, मतलब काम करवाना। अब इतने लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सबसे काम करवाना है, लेकिन कैसे? इफेक्टिवली कराना है और एफिशिएंटली कराना है। कैसे कराना है? इफेक्टिवली कराना है और एफिशिएंटली। अब टू अचीव प्रीडिटरमिन्ड गोल्स, प्रीडिटरमिन्ड गोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेनेवर वी डन एनी बिजनेस एक्टिविटी, एनीथिंग। मैनेजमेंट के अंदर स्टार्टिंग है, ये सबसे पहले आप अपने गोल डिसाइड करते हैं, व्हाट यू हैव टू अचीव, बिकॉज इफ यू हैव नो गोल्स देन हाउ कैन यू कैरी आउट योर एक्टिविटीज। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने भी गोल
गोल है कि यू हैव टू क्लियर योर सीयूईटी एग्जाम। सो एग्जाम को क्लियर करने गोल है आपके लिए, उस गोल के लिए आप अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो सेम यहाँ हम अपने गोल्स को डिसाइड करते हैं। ये गोल कुछ भी हो सकता है, मार्केट पेनिट्रेशन हो सकता है कि आप मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है कि आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और कुछ भी गोल हो सकते हैं। आप सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप अपने कंपेटिटर्स को वो बीट करना चाहते हैं, एनी गोल कुड बी। इस गोल को अचीव करने के लिए आप जो भी अपनी आर्ट यूज करते हैं, टैक्टिक्स यूज करते हैं, प्रोसेसेस यूज करते हैं, सो दैट आप इस गोल को अचीव कर पाओ, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। Here, I would like to tell two terms, effectively and efficiently. You know, अब effectively जो हमारी होती है effectiveness to do right thing, to do right थिंग। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है राइट काम करना। जो भी जॉब आपको दी जा रही है, अगर आप उसको सही तरीके से कर देते हैं, मतलब उस काम को आपने, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि आज रात तक ये असाइनमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, आपने कर दी, इट मींस यू आर इफेक्टिव। बट अगर मैं कहूं कि व्हाट इज एफिशिएंसी, एट लीस्ट कॉस्ट, या फिर यूं कह लीजिए विथ मिनिमाइज्ड एरर, मिनिमाइज्ड एरर, या फिर यूं कह लीजिए लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब आप उस काम को बहुत मिनिमम कॉस्ट पे कर रहे हैं। अगर मैंने कहा कि इतनी कॉस्ट आ सकती है, आप उससे भी कम कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो आप एफिशिएंट हैं। अगर आप काम को कर रहे हैं, जो काम आपको दिया गया आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप इफेक्टिव हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि जो भी हम काम को कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली हो, वो एफिशिएंसी हो, दोनों अगर आप मीट कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस सक्सेस को नो वन कैन स्टॉप योर बिजनेस सक्सेस। तो इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली टू अचीव प्रीडिटरमिन्ड गोल्स। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अब किसी मैनेजर को टारगेट दिया गया कि 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है इन अ ईयर, 5000। अब 5000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया उसने, डे एंड नाइट नाइट शिफ्ट लगा दी, बिकॉज डे में लाइट्स जाती थी, कभी कोई एम्प्लॉयर एब्सेंट है या नाइट। अब उसने जितने भी चीजें एक्स्ट्रा वो लगाता गया, तो उसने अचीव तो कर लिया टारगेट एट द एंड ऑफ द ईयर, 5000 यूनिट ही प्रोड्यूस। या मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये मैंने एग्जांपल लिया है 5000 यूनिट्स का, उसने प्रोड्यूस कर ली, फाइनली प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर ही प्रोड्यूस्ड। बट अब उसने जो इतने रिसोर्सेज लगाए, इतनी लाइट लेबर लगाई, तो उससे जो आपकी कॉस्टिंग है वो ऊपर चली गई। अब वो क्या है, ही इज इफेक्टिव, but he is not efficient, but he is not efficient. Just wait. He is not efficient. Why he is not efficient? Due to extra cost. ड्यू टू एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब कॉस्ट इतनी ज्यादा लगा दी उसने, तो इसलिए वो एफिशिएंट नहीं है। तो मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के अंदर हम कुछ भी एक्टिविटीज इस तरीके से करते हैं, इस प्रॉपर मैनेज में ऑर्गेनाइज करके करते हैं, ताकि हमारा काम एफिशिएंटली हो और इफेक्टिवली हो, और हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैनेजमेंट को हम किसी किसी और नजरिए, मैनेजमेंट को देखने के बहुत नजरिए हैं, और हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये मैटर नहीं करता कि हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आप किसी भी लेवल पे काम कर रहे हैं, टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं, लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज नीडेड एवरीवेयर। You can't escape from management क्योंकि हम we are foreman, we are doing at lower level, so what's the need of management? It's wrong. Management is needed all levels. It is universal. You can't escape. If you want to be successful in your business, if you want to take your organization at the on the top, on the higher tops, तो आप अपनी इसको वो कर सकते हैं कि आप मैनेजमेंट को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर इन अदर परस्पेक्टिव से अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो है इट्स अ प्रोसेस। क्या है ये, इट इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट। अब आप कहेंगे मैम ये प्रोसेस किस चीज की है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। किस चीज की है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड, which are
performed by managers in a synchronized या predetermined manner. Predetermined manner. प्री डिटर्मिन मैनर में ये सब एक्टिविटीज की जाती हैं. आप ये इंटरलेटेड एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? इंटरलेटेड एक्टिविटीज हैं, ये कोई प्रोसेस की तरह काम करती है. और इसको हम इंटरलेटेड क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर एक एक्टिविटी अच्छे से किया तो उसका जो इफेक्ट है, गुड वाला इफेक्ट, वो अदर एक्टिविटीज पे भी आएगा. अगर हमने वो एक्टिविटी अच्छे से नहीं की तो उसका बाकी पे इम्पैक्ट बुरा हो जाएगा. तो इसलिए हम इसको इंटरलेटेड एक्टिविटी बोलते हैं. और प्रोसेस क्यों बोलते हैं? प्रोसेस इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसकी जो सीक्वेंसिंग है वो प्री डिटर्मिन्ड है, फिक्स है. हम ऐसा नहीं कर सकते. पहले मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ, देन आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे प्रोसेस और इंटरलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है. ठीक है, लेट मी चेंज द पेज. यस, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है दैट इज प्लानिंग, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज स्टाफिंग, fourth is directing, and fifth is controlling. So these all activities are interrelated. If you are doing your planning well, then it's the good repercussion, good effective होगा, good result होगा organizing पर. सभी steps बहुत अच्छे तरीके से करने हैं. अगर आप एक चीज भी अच्छे से नहीं करते हैं तो उसका नेगेटिव रेपरकशन होगा. तो मैनेजमेंट और प्रोसेस क्यों बोलते हैं? प्रोसेस इसलिए कि प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग आएगी. ऑर्गेनाइजिंग पहले नहीं आ सकती है. ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग आएगी. स्टाफिंग पहले प्लानिंग की जगह नहीं ले सकती है. और डायरेक्टिंग हमेशा स्टाफिंग के बाद आती है. और कंट्रोलिंग लास्ट में होता है कि हम कंट्रोल करते हैं. तो बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज, इट इज अ प्रोसेस. और मैनेजमेंट के अंदर इन सभी एक्टिविटीज को हम वन बाय वन सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं. और फाइनली और फिर हमारा मैनेजमेंट होता रहता है. और बेसिकली मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है. व्हेन यू रीच एट कंट्रोलिंग यू कांट थिंक कि आपका मैनेजमेंट तो कंप्लीट हो गया, अब तो फ्री है, छुट्टी. नो, ऐसा नहीं है. इट्स कंप्लीट, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस. लेट मी टेल यू समथिंग कि ये जो मैनेजमेंट है, management is a ongoing process. It is a ongoing process. ongoing मतलब कंट्रोलिंग पे आने के बाद आप देखोगे कि अब हमें फिर से उसको प्लान करना है. तो लेट मी ब्रीफ यू ऑल दीज एक्टिविटीज कि कैसे कैसे करना है. अब फर्स्ट है प्लानिंग. अब प्लानिंग आप रियल लाइफ में आप क्या करते हो? प्लान करते हो. जब भी आपको कहीं भी जाना है, अगर आपको बाहर आउटिंग के लिए जाना है या आप स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं या कॉलेज में ले रहे हैं, तो प्लान तो करते हैं. सो प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इन दिस व्हाट वी डू, we just decide what to do. Basically planning is deciding in advance what is to be done in future. आप फ्यूचर में क्या करेंगे उसका डिसाइड आप प्लानिंग में कर रहे हैं. प्लानिंग व्हाट टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, एवरीथिंग इज डिसाइडेड. और प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं? अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को भी क्या करते हैं? फिक्स करते हैं. स्ट्रेटेजिक गोल्स फिक्स हो जाते हैं तो आप उसमें फिर हम उनकी स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाते हैं, टेक्टिक्स प्लान बनाते हैं. स्ट्रेटेजिक प्लान इज अ लॉन्ग टर्म प्लान. लॉन्ग टर्म में हम क्या व्हाट वी वांट टू अचीव. और टेक्टिक्स प्लान बनाते हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कैसे हम स्ट्रेटेजिक प्लान को अचीव कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं और एक पूरा एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लेते हैं, अपने गोल्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अचीव कैसे करना है. इन रियलिटी नथिंग इज डन बट जस्ट एक फ्रेमवर्क, एक थॉट प्रोसेस चलाते हैं कि ये हमारे गोल्स हैं और हमें इसको अचीव करना है. आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग. अब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. अब एक इस ऑर्गेनाइज वर्ड को तो रियल लाइफ में आपने सुना होगा. मैं कहती हूँ कि आप ये चीजों को ऑर्गेनाइज कर दो. तो आपने प्रॉपर अपनी बुक्स को कबर्ड में रख दिया, अपने कपड़ों को जो आपकी वार्डरोब है उसमें रख दिया, शूज को शू रैक में रखा, तो ऑर्गेनाइज किया. इसी तरह ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग ऐसा फंक्शन है जिसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं. क्या डिसाइड करते हैं? एक स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं. और स्ट्रक्चर के अंदर हम अथॉरिटीज, रिलेशनशिप सबका डिसाइड करते हैं कि हु विल टेक ऑर्डर फ्रॉम हूम, what would be the reporting relationship. एक entire framework of organization is established in this organizing. और हम इसमें ये देखते हैं कि अब कौन पर्सन किसके नीचे काम करेगा, किसके नीचे. फॉर एग्जांपल अगर मेरे ऊपर एक चेयरमैन है, चेयरमैन के नीचे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे एकेडमिक इंचार्ज है, एकेडमिक इंचार्ज के नीचे टीचर्स काम कर रही हैं. तो ये सब क्या है? ये जो पूरा प्लान आप देख रहे हैं, व्हाट इज दिस? तो दिस इज what? तो दिस इज
ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें आप एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को रेडी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे हम अथॉरिटी रिलेशनशिप भी डिसाइड करते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, और सम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि डेलीगेशन किया जाता है, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का डिसीजन लिया जाता है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन। इट डिपेंड्स ऑन द टॉप अथॉरिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हम सेंट्रलाइज करेंगे या डिसेंट्रलाइज करेंगे। सेंट्रलाइज मतलब पावर को टॉप अथॉरिटी के पास सेंट्रलाइज करके रखना, बहुत कम पावर स्प्रेड करना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बहुत कम, और जो इंपॉर्टेंट है वो अपने पास रखना, लेकिन मोस्ट ऑफ द पावर को हम यहाँ डिस्पर्स कर देते हैं, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। एंड आफ्टर दैट स्टाफिंग, अब हम स्टाफिंग कर रहे हैं, अब स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया, हमने डिसाइड कर लिया कि 4 मैनेजर्स होंगे, मार्केटिंग मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन में तो सिर्फ हमने पोस्ट डिसाइड की है। क्या डिसाइड किए, पोस्ट डिसाइड किए, लेकिन उसमें पर्सन नहीं बैठे हैं अभी तक। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस इन विच क्या किया जाता है, इन विच रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टेक प्लेस। अब रिक्रूटमेंट की जाती है, मोस्ट एंड मोर एम्प्लॉइज आर इनवाइटेड कि आओ अप्लाई करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आते हैं, ये पॉजिटिव प्रोसेस होती है। उसमें फिर हम स्क्रीनिंग करते हैं, उनके फिजिकल टेस्ट लेते हैं, उनके काफी सारे अदर टेस्ट भी होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलेक्चुअल टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जब उस टेस्ट में भी अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद भी कुछ अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिनके बेस पे उनका इवेल्युएशन किया जाता है, वेदर दे आर फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, कि वो फिट है या नहीं है। अगर वो फिट है तो उनको हायर कर लिया जाता है, और अगर वो फिट नहीं है हमारे उसमें उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तब हम उन्हें लीव कर देते हैं। तो सिलेक्शन को इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। तो और रिक्रूटमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो बेसिकली राइट पर्सन को अपॉइंट करना, राइट पीपल को राइट प्लेस पे अपॉइंट करना, फिक्स करना। क्यों, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो, और वो हमारे जो अचीवमेंट है गोल्स की, वो बहुत अच्छी हो। तो ये हमारा है स्टाफिंग। आफ्टर दैट अब पीपल आ गए हैं आपके पास, अब आप उन्हें क्या करेंगे, आप डायरेक्टिंग देंगे, डायरेक्शंस देंगे। डायरेक्शन मतलब इंस्ट्रक्शन, हाउ टू डू द वर्क, हाउ टू अचीव द गोल्स। अब डायरेक्शंस भी क्या होनी चाहिए, बहुत ही प्री डिटर्मिन्ड होती हैं, फिक्स होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। बेसिकली एम्प्लॉइज शुड बी क्लियर इन देयर माइंड व्हाट दे हैव टू डू, व्हाट दे हैव टू अचीव। अगर वो फिक्स है, डायरेक्शन उनको अच्छी है, पॉजिटिव है, then they would be perform better. If instructions are not clear to them, instruction नहीं पता कि मशीन कहाँ पर है, कहाँ से रॉ मटेरियल पिक करना है, कहाँ जाना है, किसको रिपोर्ट करना है, तो ये सब चीजें अगर क्लियर नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्शन के अंदर हम उनको मोटिवेट भी करते हैं, तो मोटिवेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग। हम लीडरशिप करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, बेसिकली एम्प्लॉइज को इतना केपेबल बनाते हैं कि वो प्री डिटर्मिन्ड गोल्स को अचीव करने में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे सके। अगर डायरेक्शन बहुत अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्शन अच्छा मिलेगा, तो आप भी अपने गोल्स को अचीव करेंगे ना। आप कोई भी इंसान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे डायरेक्शन अच्छी नहीं मिलती लाइफ में, सम टाइम ही और शी इज नॉट एबल टू अचीव देयर गोल्स। सो सेम इज हियर, अगर डायरेक्शन अच्छी है, गुड इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके ऊपर मेंटोरशिप है, वो फॉरमैन के नीचे काम कर रहे हैं, तो फॉरमैन उनको गाइड कर रहा है, तो इस तरह से एम्प्लॉइज अगर अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से, उनको हर चीज क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी है इंस्ट्रक्शन में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन आपकी अच्छी है। अब लास्ट है कंट्रोलिंग। अब आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जस्ट लाइक प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग बेसिकली इट्स द प्रोसेस इन विच जो भी आपके प्री डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स थे, दे आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, दे आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जस्ट वेट। उसमें कंट्रोलिंग के अंदर बेसिकली इट्स अ प्रोसेस इन विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स, एंड देन वी सी वेयर आर द डेविएशंस। डेविएशंस कहाँ हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे सपोज कीजिए टारगेट सेट किया था, सपोज कीजिए अगर मेरा टारगेट था 10,000 यूनिट्स का, और मैंने अचीव किया है 8,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स का टारगेट है, अचीव किया हमने 8,000 यूनिट्स। अब हम क्या करें, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, कंट्रोलिंग में हमारा काम ही यही है कि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट हम रखकर कंपेयर करते हैं, और फिर देखते हैं कि डेविएशंस क्या है। क्या देखते हैं, डेविएशंस आर फाइंड आउट, कि कहाँ कहाँ डेविएशंस आ रहे हैं, और फिर हम उनका करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, मेजरमेंट एक्शन लेते हैं, और देखते हैं कि वेयर वर द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स कहाँ थी। तो टारगेट को हमने
परफॉर्मेंस से कंपेयर किया, अब 2000 का डेविएशन आया है। कितना डेविएशन आया है? 2000। अब रीजंस को फाइंड आउट करेंगे, रीजंस को फाइंड आउट करेंगे। रीजन तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने स्टैंडर्ड ही बहुत हाई रख दिया हो, ये रीजन हो गया हो कि आपने इतने हाई स्टैंडर्ड रखे हैं, असली में हम 8000 ही अचीव कर सकते, 10,000 अचीव ही नहीं कर सकते थे ड्यू टू इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, बट यू सेट 10। तो आपका स्टैंडर्ड वो है। मे बी जो आपकी जो फॉल्टी वो है प्रैक्टिसेस हैं, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, आपकी जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो फॉल्टी है, ये भी रीजन हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्शन करने का तरीका है वो गलत है, या जो आपके पास जो वो है इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स हैं ओल्ड टेक्नोलॉजीज की हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो ओल्ड है, या फिर आप यूं कह ली आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, अनट्रेन्ड है, अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज, या फिर आपका जो मैनेजमेंट है वो आपका वीक है। कोई भी reason हो सकता है, इन सब रीजन में से कुछ भी हो सकता है। आपने रीजंस को फाइंड आउट किया, अब उन रीजंस को पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर देखेंगे, फिर उस पर वर्क करेंगे, मतलब वर्क करना मतलब मेजरमेंट एक्शन लेना कि क्या है। देखो रीजन पता लगा लिए कि फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपने अपना स्टैंडर्ड फिक्स किया और आप उतने अचीव नहीं कर पा रहे मार्क्स, तो आप रीजन देखेंगे ना, ओ मुझे ज्यादा पढ़ना चाहिए था, मैं कम पढ़ा हूँ, या पढ़ते वक्त मैंने फोन पे गेम्स खेली हैं, या मैं कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ा, तो रीजन से पता लग गया यहाँ पे भी और आपको भी। तो उन रीजन पे हम वर्क करते हैं, मतलब उसे हम कहते हैं मेजरमेंट एक्शन। मेजरमेंट एक्शन लेते हैं और उन चीजों को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं जहां जहां हमारे एरर्स रहे हैं, जहां जहां हमारे वीक पॉइंट्स रहे हैं। तो यहाँ ये कंट्रोलिंग है। और यहाँ बस हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हमारा टॉप अथॉरिटी दिखता है, और डिपेंड करता है टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसे कोई जगह डेविएशन आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर हमने कोई बहुत क्रिटिकल गोल सेट किया था वो हमें अचीव होना चाहिए, लेकिन अगर कोई माइनर सी चीज के अंदर डेविएशन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे स्पेंड होने चाहिए थे 100 रुपीज और उस पर 102 रुपीज स्पेंड हो गए, तो इट्स नॉट अ बिग डील। डिपेंड करता है कौन से जो एरियाज हैं वो क्रिटिकल है, कौन से लेस क्रिटिकल है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन उसे डील करेगा ये सब देखा जाता है। और क्रिटिकल पॉइंट्स को जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पे हैंडल किया जाता है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल करते हैं। और अब आप सोचेंगे कंट्रोलिंग हो गई तो मैनेजमेंट ओवर हो गया, नो, मैनेजमेंट इज नॉट ओवर हियर। मैनेजमेंट एज एंड आई टोल्ड यू इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस, मैंने अभी आपको बताया है। ये हमारी क्या है, ये हमारी है कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस। अब फिर से हम प्लानिंग करेंगे, मतलब फिर से हम अपने स्टैंडर्ड्स को फिक्स कर रहे हैं, फिर से हम उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। बेसिकली ये प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी, और जहां भी हमारे वो आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम ठीक करेंगे। अब ये थी, इट वाज ऑल अबाउट मैनेजमेंट प्रोसेस, या फिर यूं कह लीजिए इट इज अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज व्हिच आर डन बाय मैनेजर्स टू अचीव प्रीडिटरमाइंड गोल्स। प्लानिंग, प्लानिंग में हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया, मैं उसको एक आपको व्यू दे रही हूँ, वेरी लिटिल व्यू, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। प्लानिंग में हमने डिसाइड किया ये गोल्स है हमारे, इसको हमें अचीव करना है, और लॉन्ग टर्म गोल भी बनाते हैं, स्मॉल टर्म लॉन्ग सब कुछ बनाते हैं, और उसके लिए हम प्लान्स बनाते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स भी होती हैं, वन टाइम यूज प्लान्स, वेरियस टाइप्स के प्रोसीजर प्लान, पॉलिसीज, रूल्स, सब फ्रेमवर्क बनाया जाता है। आफ्टर दैट हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन किसके नीचे काम करेगा, किसके अंडर काम करेगा। अब आप मुझसे डील कर रहे हैं तो मेरा और आपका रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं एकेडमिक इंचार्ज से डील करूंगी, एकेडमिक इंचार्ज को प्रिंसिपल से डील करेंगे, तो ये पूरा हायरार्किकल ऑर्डर होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली एक स्ट्रक्चर इज डिसाइड, और एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क इज डिसाइडेड इन विच हु विल टेक ऑर्डर फ्रॉम whom इट इज डिसाइडेड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कुछ वो नहीं करना है। तो जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसीज हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको टास्क देना चाहिए, तभी अच्छा होगा। और स्टाफिंग के अंदर हमने क्या किया, स्टाफिंग के अंदर हमने अब उन सीट्स को जो बनाई है ऑर्गेनाइजिंग में, हमने प्रोफाइल बना दिया कि यहाँ मार्केटिंग मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, चेयरमैन है। बट वो चेयरमैन कौन है, वो मार्केटिंग मैनेजर कौन है, सेल्स मैनेजर कौन है, वो सब भी तो फिक्स करने हैं, वो सब हम स्टाफिंग में करते हैं। अपना एम्प्लॉयमेंट ऐड देंगे, रिक्रूटमेंट कहते हैं उसको, पॉजिटिव होता है, ये बहुत सारे लोग आते हैं अपनी अपनी क्वालिफिकेशन लेकर, एक्सपीरियंस लेकर,
फिर हम देखते हैं उसकी स्क्रीनिंग होती है, तरह तरह के तरीके से हम उनकी इंटरव्यूज टेस्ट लेते हैं। जब सब में वो चीज क्वालिफाई होता है, उनका रेफरेंस चेक होता है, लॉट ऑफ टेस्ट के बाद हम उनकी स्टाफिंग कर लेते हैं। अगर ये स्टेप पे अगर आपने अच्छे से नहीं किया स्टाफिंग, तो आपके पास रिसोर्स ही अच्छा नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स ही अच्छा नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ये वही रिसोर्स है जो आपके रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, उसे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगा। अगर वो ही नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए आपकी स्टाफिंग अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि रॉन्ग पीपल कैन टेक टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू द बॉटम। तो आपको स्टाफिंग अच्छे से करनी है, रिसोर्स शुड बी गुड। ओके। अब है डायरेक्टिंग। डायरेक्शन के अंदर मैंने आपको बताइए, मैं सिर्फ ब्रीफ कर रही हूँ आपको। डायरेक्टिंग के अंदर हम डायरेक्शन देते हैं एम्प्लॉयज को कि कैसे वर्क करना है। आपका आपसे क्या सपोज किया जाता है, आपका डेली का क्या टारगेट है, आपको कैसे अचीव करना है, कहाँ आपके रॉ मटेरियल, कहाँ आपके टूल्स हैं। अब आप कहोगे ठीक है, तो बता दिया, डायरेक्टिंग हो गई। नहीं, डायरेक्टिंग तरह नहीं होती है। हमें उनको मोटिवेट करते रहना काम करने के लिए। अब आप कहोगे मोटिवेट कैसे करें? मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स होते हैं। आप मॉनेटरी इंसेंटिव दे सकते हैं, नॉन मॉनेटरी दे सकते हैं। मॉनेटरी के अंदर आप उनकी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं, या आप उनका वेजेस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड रख सकते हैं। इस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। और नॉन मॉनेटरी में आप उनका पोजीशन बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल, मैं टीचर हूँ, इफ समवन इज मोटिवेटेड, उन्होंने मुझे एकेडमिक इंचार्ज बना दिया, तो ओके, आई आई जस्ट फील हैप्पी कि मैं अब प्रमोट हो गई हूँ। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से उनको डायरेक्शन इस तरीके से देते हैं कि एक रिसोर्स जो गुड है उसको वेरी गुड बनाने का एफर्ट किया जाता है, और जो वेरी गुड है उसको एक्सीलेंट बनाने के एफर्ट्स किए जाते हैं। और जो एम्प्लॉय, अगर डायरेक्शन अच्छी है, तो आपका एम्प्लॉय अगर स्टाफिंग की लेवल पर अगर आपने थोड़ा सा अगर वो अनस्किल्ड भी है, अगर आपने उसको अपॉइंट कर लिया बाय मिस्टेक, या फिर आपको नीड थी, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी है, तो उस एम्प्लॉय को आप बिल्कुल गोल्ड या डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी गुड डायरेक्शन, बिकॉज डायरेक्शन has power. So knowledge has power. So same in the direction has power. And last में हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं। कंट्रोलिंग में हम सारे स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, और फिर देखते हैं डेविएशंस कहाँ हैं, उन डेविएशंस को फाइंड आउट करते हैं। और इसमें ये भी देखा जाता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेविएशन। उन 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 एग्जेक्टिव से, उन फॉरमैन से, एम्प्लॉइज से बात की जाती है, और उन प्रॉब्लम्स को हम दूर करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। और एफर्ट्स करने के बाद हम उसे ठीक करते हैं। और जो क्रिटिकल एरियाज होते हैं हमारे, वो जनरली हमारे टॉप एग्जेक्टिव्स देखते हैं, बिकॉज वो बहुत क्रूशियल नेचर के होते हैं। अगर उसको इग्नोर किया जाएगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बैड इंपैक्ट आ सकता है। तो फिर से अगेन हम प्लानिंग पर आ जाते हैं। ऑर्गेनाइज, दिस इज द प्रोसेस जो कभी नेवर एंडिंग होती है। अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलाइव है, तो ये प्रोसेस भी अलाइव है। ये प्रोसेस, या यूं कह लीजिए, अगर ये प्रोसेस है आपके पास, तो आपका बिजनेस भी सर्वाइव है। तो अब जैसे जापान एक बहुत छोटा कंट्री था, उस पर हिरोशिमा नागासाकी ने बॉम्ब गिराए थे, यू बेटर नो अबाउट दिस। अब इतना स्मॉल अंडर डेवलप होने के बावजूद भी हिरोशिमा, जापान इतना डेवलप हुआ, व्हाई? ड्यू टू देयर मैनेजर्स। वहां पे जो मैनेजर्स की जो कैपेबिलिटी है, वो रिमार्केबल, मतलब अनबिलीवेबल। वहां के मैनेजर्स के अंदर इतना एफिशिएंसी है, वो काम को इतनी इफेक्टिवनेस से करते हैं कि वो अपने गोल्स को अगर डिसाइड करते हैं, तो उस पर फोकस होकर अचीव करते हैं। तो वहां की कंपनीज आज भी हिट है ड्यू टू देयर गुड मैनेजमेंट। So this was all about management. I hope this would be clear to you. If any doubt, then you can ask. तो जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, तो इस तरीके से हम अपनी प्रोसेस को आगे मूव ऑन करते हैं। अब मैनेजमेंट को प्रमोट करने के लिए क्या है, हमारे बहुत सारे जो मैनेजर्स हैं टाइम टू टाइम आए। फॉर एग्जांपल हेनरी फ्योल जी आए हैं, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए। एफडब्ल्यू टेलर, जिनको आप जानते हैं, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स दिए। बेसिकली जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ये हमारे मैनेजमेंट जब हम करते हैं, मैनेजर्स उनको गाइड करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं। और प्रिंसिपल को हम एज इट इज कभी यूज नहीं करते, दे आर नॉट स्ट्रेट अवे जैकेट्स। हम उनको अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कि कैसे उसको यूज किया जाए। हेनरी फ्योल के कितने प्रिंसिपल हैं? डज एनीबॉडी नो? ओके, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। और ये 14 प्रिंसिपल्स की नॉलेज अगर किसी को भी होती है, या उसको हम यूज करते हैं, तो वो हमारे बहुत अच्छे काम आते हैं। उन्हें हर चीज के ऊपर